નમસ્કાર, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના ખાસ કાર્યક્રમ કરંટ અફેર્સમાં હું જયેશ સોની આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એક એવા શખ્સની જે પોતાની ઓળખ છુપાવીને લવ જેહાદ જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ હોવાનો હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. સુરતની ટેક્સટાઇલ માર્કેટની અંદર એક વિધર્મી દ્વારા હિન્દુ તરીકેની ઓળખ ઊભી કરીને આ તમામ પ્રકારનું ષડયંત્ર રચવામાં આવી રહ્યું હોવાના આરોપ લાગી રહ્યા છે. આ વિષય ઉપર એક વિશેષ અહેવાલ આપણે જોઈ લઈએ અને પછી હિન્દુ સંગઠનના નેતા સાથે આપણે આ વિષય ઉપર વાત કરીશું. સુરતના અવર ટેક્સટાઇલ માર્કેટ ખાતે રૂહી ફેશન નામની દુકાન ધરાવનાર વ્યક્તિને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના કાર્યકર્તાએ પહોંચીને ત્યાં હાજર અર્જુનસિંહ નામ ઓળખ ધરાવતા વ્યક્તિની પૂછપરછ કરી હતી. અર્જુનસિંહ ઘણા વખતથી પોતે હિન્દુ હોવાની ઓળખ ધરાવતો હતો અને એના વિઝિટિંગ કાર્ડ સહિત સોશિયલ મીડિયામાં પણ પોતે અર્જુનસિંહ હોવાનું પ્રસ્થાપિત કર્યું હતું. પરંતુ હિન્દુ સંગઠનોની તપાસમાં આ વ્યક્તિની ખરી ઓળખ સામે આવી ગઈ હતી અને તે ખરેખર એની અસલી ઓળખ ઓઝેર આલમ અને તે હિન્દુ નહીં પરંતુ મુસ્લિમ હતો. હિન્દુ સંગઠનોની તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું હતું કે તે પોતાની દુકાનમાં હિન્દુ યુવતીઓને નોકરી આપી તેમની સાથે સંપર્કો વધારીને લગ્ન કરવાની લાલચ આપીને એમનું યૌન શોષણ કરતો હતો ને લવ જેહાદ કરવાના ઈરાદે હાલમાં એની દુકાને કામ કરતી એક યુવતીને પણ એણે પોતાની પ્રેમ જાળમાં ફસાવી હતી અને 15 દિવસ પહેલા તે યુવતીને સાપુતારા ખાતે લઈ જઈને એની સાથે લગ્નની લાલચ આપીને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. જ્યારે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદને આ બાબતે જાણકારી મળી ત્યારે એની દુકાને જઈને તપાસ કરતા ઓઝેર આલમે પોતાની દુકાન જીએસટી રજીસ્ટ્રેશન પોતાના કર્મચારીના નામે લીધું હતું અને તેની પાસે 2 આધાર કાર્ડ પણ મળી આવ્યા હતા, જેમાં એકમાં અર્જુનસિંહ નામ છે અને જ્યારે બીજામાં ઓઝેર આલમ દર્શાવી રહ્યું છે. अवध मार्केट जो सूरत अवध टेक्सटाइल मार्केट है, सूरत बॉम्बे मार्केट के सामने, वहाँ पर एक विधर्मी ओजार आलम नाम का विधर्मी अर्जुन सिंह नाम से व्यापार कर रहा था और उसने जो अपना विजिटिंग कार्ड है उस पर अर्जुन सिंह लिख रखा था. इंस्टाग्राम आईडी पे अर्जुन सिंह था, फेसबुक आईडी पे अर्जुन सिंह नाम लगा रखा था, लेकिन उसका जो ओरिजिनल आधार कार्ड है वो ओजार आलम के नाम से था. कई वर्षों से वो इस नाम से धंधा कर रहा है. रूही फैशन नाम की उसकी दुकान है और हिंदू लड़की को वहाँ उसने जॉब पे रखा हुआ था, उसको ले छोड़ने घर पे छोड़ने जाता था, उसको घुमाने ले जाता था. उसने उसको उस लड़की को प्रेम जाल में फंसाने की भी कोशिश की और समय रहते हमको पता चल गया तो हम लोगों ने उसको पकड़ लिया. જેહાદી માનસિકતા ધરાવતો ઓઝેર આલમે અનેક હિન્દુ યુવતીને લગ્નની લાલચ આપીને દુષ્કર્મ કર્યું હોવાની વાતે પણ જોર પકડ્યું છે. ત્યારે હાલ ભોગ બનનાર યુવતી અને એના પરિવાર દ્વારા સમાજમાં બદનામીના ડરને કારણે અને જેહાદી માનસિકતા ધરાવતા વિધર્મી એવા ઓઝેર આલમના ડરને કારણે પોલીસમાં ફરિયાદ કરવાનું ટાળ્યું છે. પરંતુ ખોટી ઓળખ ધારણ કરીને જાહેરમાં છેતરપિંડી કર્યાના હિન્દુ સંગઠનના આરોપો હેઠળ પોલીસ કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી કરી લીધી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. તો આપણે જોયું કે કઈ રીતે વિધર્મી દ્વારા આ એક પૂરું જેહાદી ષડયંત્ર રચીને પોતાની ઓળખ બદલીને પોતે મુસ્લિમ હોવા છતાં હિન્દુ ધર્મના નામનું ધારણ કરી સોશિયલ મીડિયામાં પણ આઈડીઓ બનાવી વિઝિટિંગ કાર્ડ અને દુકાનમાં પણ પોતે હિન્દુ હોવાની ઓળખ ઊભી કરી હતી અને હિન્દુ છોકરીઓને પોતાની દુકાનમાં નોકરી ઉપર રાખી એનું યૌન શોષણ કરતો હોવાના આરોપ એની ઉપર લાગી રહ્યા છે. હાલ જે છોકરીની સાથે એણે દુષ્કર્મ કર્યું છે એના પરિવાર દ્વારા સમાજમાં બદનામીના ડરથી ફરિયાદ આપવાનું હાલ ટાળ્યું છે, પરંતુ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને અન્ય હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા પરિવારને હિંમત રાખી પોલીસ ફરિયાદ આપવા માટે મનાવવામાં આવી રહ્યા છે. તો આપણી સાથે અત્યારે આજ બધા વિષયો ઉપર નરેન્દ્રસિંહ ચૌધરી જોડાઈ રહ્યા છે, જેઓ વીએચપીના અહીંના સ્થાનિક નેતા છે. આપણે એમની સાથે વાત કરીશું કે વારંવાર જે આ રીતે વિધર્મીઓ દ્વારા હિન્દુ યુવતીઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહી છે એના માટે તેઓ શું માની રહ્યા છે. नरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये आज का जो किस्सा है जिसके अंदर आपने पूरी जो कवायद है वो उसमें आप शामिल थे, आपको पूरी हिस्ट्री पता है कि किस तरह से वो हिंदू नाम धारण करके युवतियों के साथ यौन शोषण कर रहा था. क्या क्या कहेंगे ऐसे विधर्मियों के बारे में, आप क्या कहेंगे? किस तरह का ये जिहादी षड्यंत्र लग रहा है आपको?
देखिए, ये तो 100% तय है कि ये षड्यंत्र है, वरना किसी भी इंसान को अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सूरत में जो अवध टेक्सटाइल मार्केट है, उसके अंदर रूही फैशन नाम से ये दुकान चला रहा है। पहले इसकी दुकान वीटीएम मार्केट में थी। हम पिछले कई दिनों से इसके पीछे लगे हुए थे। इसका ओरिजिनल जो नाम है वो उजियार आलम है, और इसका एक दूसरा नाम, इसने नया नाम बना रखा है अर्जुन सिंह। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये तो हमने इसको, मतलब भगवान की दया से कि हमने इसको जल्दी दर दबोचा, वरना ये कोई बड़ा अंजाम देने वाला था ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से उसने दूसरा एक आधार कार्ड, डमी आधार कार्ड बना रखा है, और सारी सोशल साइट पर जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सारी जगह इसने अपना नाम अर्जुन सिंह बता रखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र करने जा रहा होगा। आज नहीं तो साल भर बाद में या 2 साल बाद में अगर आज ये नहीं पकड़ा जाता तो कोई नो डाउट के कोई बड़ा षड्यंत्र हमारे सामने आ सकता था। बिल्कुल, ये एक्चुअली आपने इसको पकड़ के पुलिस के हवाले भी किया है, लेकिन जहां तक जानकारी हमारी है, ये जो आरोप उस पर लगे हैं अभी फिलहाल, उसके ऊपर जाली आइडेंटिटी बनाने का, मतलब आधार कार्ड का डुप्लीकेशन करने का आरोप लगा हुआ है। पुलिस कार्रवाई उसी के दायरे में जांच कर रही है, और अगर उस पर यह आरोप साबित भी होता है तो ये आसानी से छूट भी जाएगा, और फिर से अपना, शायद हो सकता है कि कोई और नाम लेकर के ये फिर से अपनी असलियत पर आ सकता है। इस तरह से ही नवसारी के अंदर पिछले दिनों हमने किस्सा देखा कि एक विधर्मी कई टाइम से हिंदू युवती के साथ दुष्कर्म करता था, और फिर अपने आप को बचाने के लिए उसने किसी अपने जो हत्या का आरोपी था, ऐसे अपने दोस्त के साथ उसकी शादी करा दी। इसी तरह से अभी हमने देखा कि जो हमारे ट्रेडिशनल गरबा क्लासेस, जो हमारे नवरात्रि आ रहे हैं, गरबा क्लासेस चल रहे हैं, तो वहां पर भी घुसपैठ कर दी गई है, और उसने भी अपना नाम आकाश दिखा रखा था सोशल साइट पे। तो इस तरह से जो घटनाएं सामने आ रही है एक के बाद एक, क्या मानते हैं कि ये जो सारी आइडेंटिटी को छुपाकर लोगों के बीच जाना, ऐसे हिंदू कम्युनिटी के बीच में जाना, और उसके साथ क्या, किस तरह का ये व्यवहार है इन लोगों का, और क्या इससे दुष्प्रभाव पड़ सकता है? अब पहले तो ये कि हमारा धर्म ही इतना उदारवादी है कि इनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि ये हमारे बीच में आके नाम बदल के इस तरह से रह जाते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि कोई हिंदू मुस्लिम कंट्री जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई जाकर इस तरह से नाम बदल कर रह सकता है? हिम्मत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे में भी बहुत सारी कमियां हैं, उसे हमें दूर करनी होगी। क्योंकि इस तरह से समाज में आए दिन ये किस्से सामने आ रहे, जैसे कि अभी बीच में वो गरबा वाला हुआ था, उसके पहले हुआ था, और अभी जैसे कि आपने कहा कि नवसारी के अंदर उसने उसको रखा, फिर उसने अपने एक दोस्त जो कि हत्यारा था उसको सौंप दिया। तो जाहिर सी बात है, समाज को दिख ही रहा है क्या हो रहा है। तो अभी इसमें हमें और ज्यादा प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके चैनल का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने ऐसे मामले उजागर किए और आप ऐसे मामले सामने ला रहे हो। लोगों को पता चल रहा है कि सूरत में ही नहीं बल्कि नवसारी में हर जगह ये सारी साजिशें चल रही है। तो लोगों को जागरूक होना होगा, और जो लोग ऐसे लोगों को, जो लोग आज ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करते, सबसे पहले तो ऐसे लोगों को जागरूक, हमारे ही लोगों को जागरूक होना कि हम, इनकी हिम्मत कैसे हो जाए कि ये हमारे बीच में आके इस तरह की गलत कृत्य कर दे। हमारा धर्म किसी भी भगवान का विरोध नहीं करता है। हमारा धर्म कभी नहीं सिखाता है कि हम किसी का विरोध करें। हमें किसी के धर्म से तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर कोई आके हमारे धर्म पर प्रहार कर रहा है तो हमें सेल्फ डिफेंस करने का पूरा अधिकार है। इसी के लिए हम आज ये जो वीएचपी जैसे संगठन है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बने हुए। लोग इसको बिना फालतू, अभी थोड़ी देर पहले डिबेट में बदनाम कर रहे थे कि वीएचपी का तो काम है इस तरह से हमारे लोगों को बदनाम करना। अरे भाई, हम सड़क पे चलते हुए लोगों को थोड़ी ना छेड़ रहे हैं। कोई मुस्लिम, आम मुस्लिम हो या चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जो भी अन्य नॉन हिंदू हो, तो सड़क पर राह चलते हुए हिंदू को तो, नॉन हिंदू को तो हम नहीं छेड़ रहे हैं।
हम उनको तो जाके परेशान नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं किसी ने गलत किया है तो ही हम उसकी दुकान पर जा रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं। कोई कोई जो विधर्मी है, जो गलत काम कर रहा है, इस तरह का काम कर रहा है, तो हम तो करेंगे ही, इसमें चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हम ज्यादा करते हैं तो ये कुछ लोग इकट्ठा होकर हमारे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये लोग तो वीएचपी वाले तो कट्टरपंथी लोग हैं। अरे हम गलत क्या कर रहे हैं? अगर कोई ओजियार आलम अर्जुन बन रहा है तो क्या हम नहीं पकड़े? ये तो हमारा ही नहीं बल्कि हमारे देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि इस तरह के जो कृत्य कर रहा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अरे मेरे ही नहीं, आप मुस्लिमों का भी कर्तव्य बनता है कि अगर ओजियार आलम अर्जुन बनकर हमारे शहर में घूम रहा है तो सिर्फ हम ही नहीं, आप भी उसे पकड़वाएं। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हो, जो मुस्लिम है और इस देश का नागरिक है और इस देश से प्रेम करता है, तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि इस तरह के ओजियार को अर्जुन बनने पर रोकें, उनको समझाएं। जो मुस्लिम नेता है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम नेताओं को भी कहूंगा कि आप लोग भी अपने धर्म में जागरूकता लाओ ना। क्यों ऐसी हरकतें जो लोग कर रहे हैं उनको आप लोग क्यों नहीं समझा रहे हो? इसी से घर्षण पैदा हो रहा है, देश की जो स्थिति है ये बिगड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई अर्जुन के अकेले का काम नहीं है। अर्जुन, ये जो ओजियार आलम है, जो अर्जुन बना है, इसके अकेले का काम नहीं, इसके पीछे कोई ना कोई ताकत, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इसको समर्थन कर रही होगी, सपोर्ट कर रही होगी, तभी इसकी इतनी हिम्मत हुई। वरना हमारी तो हिम्मत नहीं होती। हम हिंदू होकर हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम बोगस आधार कार्ड बना दे। हम क्यों? हमें प्रशासन का डर है। अगर उसको प्रशासन का डर नहीं था, मतलब कहीं ना कहीं कोई बड़ी विदेशी ताकत हो या देश विरोधी गतिविधियों वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं ना कहीं कोई तो इन ऐसे लोगों का सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों की हिम्मत बनती है ऐसे काम करने की। बिल्कुल 100% ये बात पुलिस को भी गौर करनी चाहिए कि इसको इस तरह से अपना नाम छुपाने की जरूरत क्या पड़ी, हिंदू नाम लेकर के अपनी पहचान बनाने की जरूरत क्या पड़ी, कोई उसके पीछे का उसका मकसद क्या था? केवल लव जिहाद या लड़कियों के साथ दुष्कर्म करना, या इसके अलावा और भी कोई मकसद था? ये चीज भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। पुलिस को गंभीरता से इस मामले को जांच करना चाहिए। इसके साथ और कौन कौन शामिल है, किसका इसको सपोर्ट है, ये सारी चीजें पुलिस को अपने जांच के दायरे में लानी चाहिए और इस पर खुलकर अच्छे से जांच होनी चाहिए। तभी चीजों का खुलासा हो पाएगा और इसका असली मकसद सामने आ पाएगा। मैं आपको अर्जुन सिंह जी एक और घटना दिखाता हूं कि हमारे लिंबायत गोडादरा इलाके में एक पार्क के अंदर पिछले दिनों नमाज पढ़ने का एक किस्सा सामने आया था, जहां पर हमारी छठ माता की पूजा भी होती है और पब्लिक गार्डन है, जो पब्लिक प्लेस है, म्यूनिसिपालिटी का संचालित ये गार्डन है, उसके अंदर जाहिर में नमाज अदा करने का किस्सा हुआ था। उसके तुरंत बाद एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ विधर्मी लड़कों ने छेड़छाड़ करने का मामला पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ था और उसमें 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के हेठर उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं, जो कि कम उम्र के लड़कों में इतनी ज्यादा हिम्मत, हिंदू लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को टारगेट करने की, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इतनी ज्यादा हिम्मत, जो कि एक साधारण फैमिली के साथ बिलोंग करने वाले एक साधारण से युवा, मतलब युवा भी नहीं कह सकते उसको, वो युवा अवस्था के करीब है अभी, और इसी एज में ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, कहां से आती है इनके अंदर इतनी हिम्मत? अब मैंने कहा, सबसे पहले तो संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इंसान, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, माली जब पौधे को सींचता है तो उसको पहले से ही उस तरह का आकार देता है, कैंची से काट काट के कि ये पौधा जब बड़ा होगा तो इसका रूप क्या होगा। तो इसमें जब बच्चे का पालन पोषण करने वालों का बहुत ही बड़ा हाथ होता है कि वह उसको कैसे संस्कार दे रहे हैं और उसको कौन सी तालीम दे रहे हैं, कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी पढ़ाई वो कर रहा है, और एक आयु में आने के बाद वो कैसे लोगों के साथ घूम रहा है। तो इसमें घर वालों का भी, मैं तो कहता हूँ, बाद में क्या होता है, जब बच्चा पकड़ा जाता है तो लोग हाथ ऊपर कर देते हैं कि अब ये इसने ऐसा कर दिया, इसमें हमारा क्या दोष। अरे जब आपका बच्चा कैसे लोगों के साथ घूम रहा है आप ध्यान नहीं रख सकते हो। अब ये बताओ, ये जो आपने घोड़ादरा वाली घटना बताई है, घोड़ादरा में
जब उनकी कम्युनिटी वहां रहती ही नहीं है तो उनको वहां आके नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी। मतलब कहीं ना कहीं ये खुद चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर देश का बिगड़े। ऐसी जो ताकत है, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, मैं किसी धर्म को नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस तरह के लोग जो विधर्मी लोग हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं, मैं इनके हमारे धर्म को नहीं कह रहा हूं। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। वरना घोड़ादरा जैसा इलाका जिसमें संपूर्ण हिंदू कम्युनिटी रहती है, वहां आके इनको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई। मतलब कहीं ना कहीं कोई ताकतें हैं जो चाहती है कि नहीं वहां ऐसा हो और देश का ये जो सिस्टम है ये बिगड़ जाए। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। दूसरा, इनकी शिक्षा, किस तरह की शिक्षा ये लेते। आज हमारे जब बच्चे बड़े होते हैं तो हमें उनमें यही शिक्षा देते। हमारा तो धर्म यही कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम में हम बिलीव करने वाले लोग हैं कि सारा विश्व हमारे कुटुंब है। हम तो उस तरीके का लोग हैं, हमारा धर्म तो उस तरीके का लोग है। हम कहीं पर भी जाए, किसी भी देश में जाए, कभी नहीं सुना होगा कि किसी हमारे धर्म के किसी सनातनी इंसान ने कहीं कोई बिल्डिंग उड़ा दी हो, कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया हो, कभी नहीं सुना होगा। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर मुस्लिम खराब होता है, लेकिन जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो ज्यादातर मुस्लिम ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी कम्युनिटी में ऐसी जागरूकता लाने की जरूरत है कि ऐसे लोग ये जो पैदा हो रहे हैं इनके धर्म का नाम खराब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें खुद को रोकना पड़ेगा। हम कितना कर लेंगे, हम तो हमारी धर्म की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए साहब, हम तो हमारे धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे चाहे लोग कितना भी बदनाम कर रहे हैं हमें। तो ये उन्हीं को ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि आज ये औजार अर्जुन बन गया है। तो कहीं किसी ने सुना कभी, अब ये जो सचिन वाला किस्सा थोड़े दिन पहले से चल रहा है, तो सचिन भी चाहता तो सलमान बन सकता था ना, तो वो क्यों नहीं सलमान बना? उसका प्रेम सच्चा था। जो अगर सच्चा प्रेम हो तो उसे नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी आपने नहीं सुना होगा किसी हिंदू लड़के को कि वो मुस्लिम बन के किसी मुस्लिम लड़की को उसने प्रेम जाल में फंसाया हो। अगर प्रेम सच्चा हो तो सब नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ती है। तो ये लोग जो नाम बदलकर इस तरह का प्रेम कर रहे हैं, ये कोई प्रेम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। और आने वाले टाइम में ये हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होगा अगर हम टाइम पर जागरूक ना हुए। और जो हमारी बहनें हैं उन्हें भी जागरूक होने की जरूरत है, उनके माता पिताओं को जागरूक होने की जरूरत है कि हमारी बहन कहाँ काम कर रही है, कैसे इंसान के पास काम कर रही है, कैसे लोगों के साथ घूम रही है, घर कितने बजे आ रही है। ये हमें भी जागरूक होने की बहुत जरूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज के माता पिताओं को भी यही कहना चाहूंगा कि जो भी माता पिता है अपनी बच्ची को कैसी स्कूल में पढ़ा रहे, कैसे कॉलेज में वो पढ़ रही है, कैसे क्राउड के अंदर वो रह रही है, उसका ध्यान रखें। एक आयु के बाद में बेटी का ध्यान रखें, वो कैसे लोगों के साथ घूम रही है। आज देखो ये जो लड़की है ये अर्जुन का शिकार हो गई थी, अब जाके उनके माँ बापों को घूमना। और कई लड़कियां तो ऐसी होती है साहब के हम जाते हैं उनके माँ बाप को, हमको जब पता चलता है हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि आपकी लड़की का ऐसा ऐसा है और वो लड़का इस तरीके का है, तो वो लोग कहते हैं नहीं आप हमारी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, हमारी बेटी इस तरह की नहीं है। बाद में 6 महीने बाद वही बेटी भाग जाती है तो ये लोग हमारे पास आते हैं कि साहब हमारे साथ पुलिस थाने चलो, थोड़ी सिफारिश करो, हमारी बेटी को जल्दी से ले आए। अरे भाई आपकी बेटी अब बालिग हो गई है, मर्जी की मालिक हो गई, हम क्या कर सकते हैं उसमें। आप ही पहले से थोड़ा सावधान हो जाओ, जब बेटी कहाँ घूम रही है उसका ध्यान रखो। तो ये भी बहुत ही चीजें मैटर करती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितने माता पिता हैं कि अपनी बच्चों पे ध्यान दें। और मेरी जो बहनें हैं, मेरी बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी थोड़ी अलर्ट हो जाए। ऐसे हमारा जो धर्म है बहुत ही भोला धर्म है, बहुत ही उदारवादी लोग हैं, हम लोगों की जो सोच है बहुत चालाकी वाली नहीं होती है। तो मैं मेरी बहनों को यही कहूंगा कि आप भी थोड़ा तेज जाओ, ऐसे लोगों के जाल में ना फंसे, थोड़ी जागरूकता अपने अंदर लाओ ताकि ऐसे लोग आपको ना फंसा सके। बिल्कुल, जागरूकता आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस समय जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद सहित जितने भी हिंदू संगठन है वो एग्रेसिवली एक्टिव हो चुके हैं। और इस तरह की जो भी घटनाएं सामने आती है तो उसके अंदर जो संगठन है उसका एक अहम रोल रहता है, क्योंकि अगर संगठन साथ ना हो तो अच्छे अच्छे लोग भी हिम्मत नहीं करते और ये शोषण का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो संगठन के लोगों के द्वारा एक सराहनीय कामगिरी हो रही है, ये बिल्कुल ही मतलब 100% सत्य कह सकते हैं हम कि ये है कि संगठन के माध्यम से ही कई लड़कियां आज सुरक्षित हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी सुरक्षित होगी। लेकिन जैसे आपने कहा हमारे में भी कुछ कमियां हैं, हमारे लोग ही जागरूक नहीं हो रहे हैं
और आंख मूंदकर जब घटना सामने आती है तब भी हिम्मत नहीं जुटाते हैं और शोषण होने के बाद भी सहन करने की शक्ति हम लोगों में कूट कूट कर भरी है। और यही वजह है कि ये तरह जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। आज अगर फरियाद हुई होती तो उसको उसकी मुकम्मल जगह पर पहुंचा दिया गया होता, लेकिन इस मामले में भी अभी फरियाद दाखिल नहीं हुई और यही वजह है कि अभी कुछ दिनों में वो छूट भी जाएगा और शायद हो सकता है फिर से वो अपने यही कारनामे शुरू कर देगा। मैं आपसे नरेंद्र सिंह जी यही जानना चाहता हूं कि लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी या हिम्मत की कमी है, तभी ये जाके ये परिणाम हम अभी भुगत रहे हैं। लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए, इसके लिए क्या करना जरूरी होगा? वैसे तो अभी पिछले 2 सालों से संगठनों ने बहुत जागरूकता लाई है और हमारी बहनें जो दुर्गा वाहिनी में वो जाके इनको जागरूक कर रही है, लड़कियों को पर्सनल ट्रेनिंग भी दे रही है हमारी बहनों को। और हम भी घूम के अब हमें लगता है कि हमें डोर टू डोर जाके लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को सिखाना होगा कि कैसे इस तरह से बचे। दूसरा कि अभी हमें सूचना मिली है कि ये जो औजियार आलम है जो अर्जुन बना फिर रहा था, इस तरह के 100 से भी ज्यादा लोग सूरत टेक्सटाइल मार्केट में एक्टिव है और अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो वो अभी हमें पता नहीं है लेकिन हम उसमें लगे हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप मुझे सुन रहे हो तो सुन लीजिए, हमारा संगठन बहुत ही जागरूक है और सारे लोग अब जागरूक हो चुके। जो भी लोग इस तरह का षड्यंत्र मार्केट में कर रहे हैं वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के चुपचाप यहाँ से नाजिंदी ना हो जाए, रफा दफा हो जाए, वरना अब हम लोग फुल्ली रेड करेंगे जैसे जैसे हमें पता चलेगा और इसकी हालत इतनी गंभीर कर देंगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हम कानून हाथ में लेंगे, लेकिन उसको इतना विवश कर देंगे कि जिंदगी में उसको वो सोच नहीं सकता कि मेरे साथ क्या होगा, उसकी नानी हम उसको याद दिला देंगे। तो अगर ऐसे लोग जो मार्केट में 100 से भी अधिक लोग बैठे हैं, मैं उसको चेतावनी दे रहा हूं, वो अगर सुन रहे हैं तो वो वहां से उठ जाए, अपने बोरिया बिस्तर बांध ले। और जो लोग हमारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जीएसटी नंबर अपने आइडेंटिटी पे ला के दे रहे हैं, जो उनको प्रूफ बना के दे रहे हैं, उन लोगों को भी मैं चेतावनी देना चाह रहा हूं कि आप हमारे समाज से बिलोंग करते हो, हमारे धर्म से बिलोंग करते हो, फिर भी अगर आप ऐसे विधर्मियों को सपोर्ट करोगे तो हम आप लोगों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे और आपके शुभ प्रसंगों में आके अंडे टमाटर फेंकेंगे। अगर आप पकड़े जाते हो कि आपने किसी विधर्मी को सपोर्ट किया है तो आपके कोई भी शुभ प्रसंगों में हम आएंगे, हमारे संगठन आएंगे और हम अंडे टमाटर आप लोगों के ऊपर फेंकेंगे, उसकी जवाबदारी आपकी स्वयं होगी। तो आप भी चेत जाओ और ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करो। और मैं मार्केट के सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि आपको कभी ऐसी कोई सूचना मिले आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी सूचना गुप्त रखेंगे, हम आपका नाम उजागर नहीं करेंगे। और जो बहनें मुझे सुन रही है जो कहीं पीड़ित है और अब वो मामला बाहर नहीं ला सकती है घर वालों से डर के, समाज से डर के, तो उन बहनों को कहना चाहता हूं वो हमारे पास आए, हमसे संपर्क करें, हम आपकी सहायता करेंगे। आपका नाम संपूर्ण तरीके से हम गुप्त रखेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि आपका नाम क्या है, आप कहां से, और आपकी पूरी मदद हम करेंगे, जितनी हो सके मदद हम करेंगे। बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी, हिंदू संगठनों के द्वारा इस तरह की अगर हिम्मत लोगों को दी जाएगी तभी लोग खुलकर आ पाएंगे सामने और अपनी ऊपर जो भी बीती है वो बता पाएंगे। नहीं तो लोग डर के मारे या इज्जत के मारे सामने आने से कतराते हैं। तो आज हमारा ये जो कार्यक्रम था वो स्पेशली ऐसे हिंदू लोगों के लिए था जो कि पीड़ित है लेकिन फिर भी सामने नहीं आता, फरियाद नहीं करता। हमारे साथ अर्जुन सिंह जी जुड़े थे। अर्जुन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने अपनी कीमती राय दी। हम आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, ऐसे कोई मुद्दे पर हम आपसे जरूर फिर से बात करेंगे। तो आपने જોયું કે જે રીતે હિન્દુ સંગઠન દ્વારા આ મામલામાં એગ્રેસિવલી અને એક્ટિવલી કાર્યવાહી કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી અને આગળ પણ એ કોશિશ ચાલુ રહેશે। કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં 100 થી પણ વધુ આવા લોકો છે કે જે લોકો આ જ રીતે સક્રિય છે। તો આવા લોકો પણ ચેતી જાય અને પોતાની આ એક્ટિવિટીઓ તાત્કાલિક બંધ કરે, નહીતર પોલીસની હવા ખાવી પડશે। આજના કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ। આવતીકાલે ફરી નવા વિષય સાથે મળીશું। ત્યાં સુધી મને રજા આપો। નમસ્કાર।